So hello guys, welcome back to the very next session. So today's our topic is logic. Logic. You all guys might have attended today's lecture, which was based on logic. Logic particularly doesn't includes in a chapter, but the logic lecture which you have attended was a basic one, just to give a kickstart for your logic preparation. Logic section particularly includes all those easy questions, or maybe I can say key logically based questions which are to be done on your own ability. Okay, so there is no rocket science behind it, but the more you practice, the more you will be comfortable doing such questions. So today's logic lecture included the questions of blood relation, direction, sense, and other chapter as well. So after being recommended by most of the students, so what I've done is I have created a test which was of blood relation, and I'll be showing my screen. You all guys have to solve those questions and try it by yourself. And so okay, we should start our session, and I'll be sharing my screen. Do try if you are able to do, and those who are new to this session or new to your preparation or maybe new to this logic part, so do not hesitate, ask doubts at the end. And if you are not able to do this question, so no need to worry. I am not expecting to do such questions in the beginning of your preparation. And those who are already known to such type of questions, you guys have to do this question, or at least you have to try the questions. Okay, so we should proceed. Start solving the first question. First and the second question, the puzzle is same. This puzzle is just of two lines. Okay, so blood relation के ऊपर दो question based है. So इस try solving first two questions based on a common information. Try the first question and the second question. Both are having a common information. And if there is an printing mistake in the first question information, so please try from the second one. The information is same. There might be a punctuation mistakes. So start doing from the second question. There is nothing to solve those first question. Just the main thing is to crack this puzzle if you are able to understand and you are able to put this passage into your page. Okay. Simple funda is if you are able to interpret this information. Okay. So this first two questions were easy. Those who are done with the second, try third one. Just try to crack the puzzle. No need to, I think there is not much needed to solve those questions ki how is A related to how is A related to D, क्योंकि ये obviously दिख जाएगा जब puzzle ही solve हो जाएगा. So main thing as of now,
from your starting preparation, start solving and start cracking these puzzles. This is actually not a puzzle, but what I have done is I have created a blood relation test, conduct having a common information with two questions per information, and the third, I have created a two line information which will conduct three tests based on three question based on it. Okay, so just try to solve this puzzle, this line, this blood relation question, and other three next question will be based on this information only. So just try to solve this. Brother-in-law means साला, मतलब your sister's brother or your wife's brother, or your sister's husband, or else your wife's brother. Then the first question information is same as the second one. So try to solve these two lines, and there is not a big deal solving this question that how is A related to D, because it is a direct question. So based on this information, if you are able to crack this two line information, so you are almost done with your answers. Okay, so just solve this two line information. First question is same, no need to solve those. ये दो लाइन इन्फॉर्मेशन तो सेम है फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो क्रैक करो ना बस, आंसर सॉल्व करेगा तो कोई भी कर लेगा, क्रैक करना सीखो बस। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन सेम है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सेम है, कॉमन है, मतलब फर्स्ट टू क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन एक कॉमन है, just the thing is the information has been repeated, and the third fourth fifth question की भी information same है, common information. Okay, so try. Okay, so are you done with these questions, or I should start with the explanation? Second question. Okay, Atharva. थर्ड में सिर्फ ये दो लाइन सॉल्व करना स्टार्ट करो ना, ब्लड रिलेशन दो लाइन को ऐड करके, ये तीन चार क्वेश्चन का मिक्सअप है ये जो है ना थर्ड क्वेश्चन, बस उसके नीचे इन्फॉर्मेशन हर कोई सेम ही है, सिर्फ ये दो लाइन को क्रैक करना हो। एक मुझे एक पेज पे लिख के बना दो, बस एक पेज पे ये रिलेशन ब्लड रिलेशन तुमने बना के दे दिया, वो चार्ट बन गया तो बस खत्म। चार्ट ही तो है मेन, क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करोगे, उसमें तो उसके बेस्ड ही क्वेश्चन, वो आगे जाके कर लेना ना, अभी चार्ट तो बनाना सीखना है अभी मेन। ओके, तो चार्ट बनाना सीखो, दो चार्ट बनाने हैं, वो तीन तीन क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन का मिक्सअप बनाया हुआ है चार्ट। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माय एक्सप्लेनेशन। So shall I start my explanation part, or I should wait for a few minutes? अथर्व, डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन में देख लेना। हाँ इजी है, पर स्टार्टिंग में करना पड़ेगा ना। Yes, this is one of the easiest chapter in CET. Okay, अभी ये लोग सीईटी में ट्रिक करते हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वैसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं, बट ये बेसिक्स करोगे तब जाके आगे समझेगा। चालू करें फिर क्या एक्सप्लेनेशन? सीईटी में इसके ऊपर बेस्ड एक पजल भी आते हैं, और सीईटी पे स्पेसिफिकली इस पे पांच क्वेश्चन, पांच मार्क यू कैन एक्सपेक्ट की पांच क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। एकदम डायरेक्ट नहीं आएगा पर आएंगे पांच क्वेश्चन, विच विल बी डुएबल। हाँ डोंट वरी, मतलब वो डुएबल ही होंगे क्वेश्चन, पर उसमें वही चीज होती है, प्रैक्टिस किया तो टाइम कम में हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा सॉल्व, तो वो अच्छा रहेगा। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाते हैं। ओके,
So first question, there are 7 family members A B C D E F G. A has 2 children. तो A मैंने यहाँ पे बनाया, एक मिनट, हाँ. So A has 2 children F and E. तो A has 2 children F and E. E who is married to D. E who is married to D. E और D के बीच में डबल लाइन कर दिया. A has 2 children, नीचे लाइन किया हायरार्की. उसके बाद F and E are of the same hierarchy. Okay, so F and E are 2 children of A and E is married to D, so double underline. फिर आगे information, E who is married to D. तो D is father of G. अब D is father of G मतलब D मेल हो गया प्लस, और E मतलब ऑब्वियसली फीमेल हो जाएगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, और उसकी उसके डॉटर सन जो भी है वो G है, मतलब D is father of G. ओके, नाउ B इज मदर ऑफ F. अब F A F E G D तक अपने ने बना लिया. अब उसने क्या बोला है, B इज मदर ऑफ F. सो मतलब A मेल हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि A और F के बीच में पेरेंट का रिलेशन है. सो A विल बी फादर एंड B विल बी मदर बिकॉज B इज मदर ऑफ F उसने बोला है क्वेश्चन में. अब आगे, C इज ब्रदर इन लॉ ऑफ B. अब C इज ब्रदर इन लॉ ऑफ B बोला है, तो मतलब B का ब्रदर इन लॉ क्या हो गया, उसके हस्बैंड का भाई. ओके, सो हस्बैंड का भाई, तो A का भाई हो गया C. सो ऐसा सॉल्व होता है. अगेन रिपीटिंग दिस वन, there are seven family members, namely A, B, C, D, E, F, G. A has 2 children F and E. Starting from A, A has 2 children F and E. F and E belong to the same hierarchy in the blood relation chart. E, A and E, who is married to D. Who is married to D बोलता है तो मतलब E का बोल रहा है. ओके, सो E who is married to D, तो E और D के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है. अभी तक एज ऑफ नाउ दे हैव नॉट क्लियर कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है. सो बीच में 2 अंडरलाइन हो गया. D इज फादर ऑफ G. अब D को मेल बता दिया फादर बोल के, तो ऑब्वियसली E फीमेल हो जाएगी क्योंकि शी विल बी मदर. सो E एंड D हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है. सो डी इज फादर, तो डी इज फादर ऑफ जी. सो जी नीचे और हायरार्की में आ जाएगा, ई मदर बन जाएगा ऑटोमेटिकली. बी इज मदर ऑफ एफ. अब बी इज मदर ऑफ एफ बोला, मतलब ए का रिलेशन दिया था एज अ पेरेंट, उसका बताया नहीं था कि फादर है कि मदर है. बट बी इसने बोल दिया कि मदर है, तो ऑब्वियसली ए विल बी फादर क्योंकि ए और एफ में पेरेंट का रिलेशन है. तो ए और बी के अंदर डबल अंडरलाइन हो गया. ओके, अब नाउ किसको किसको ये कंफ्यूजन हुआ था, सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी. अब ब्रदर इन लॉ क्या होता है, साला मतलब, जैसे कि, या फिर देवर. ओके, जैसे कि एक वाइफ है तो उसके हस्बैंड का ब्रदर वो वाइफ के लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा. ओके, सो बी इज सी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, मतलब ए का भाई हो गया वो सी. ओके, सो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम था, यही इन्फॉर्मेशन है. अभी हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी बोला है इसमें, तो एफ रिलेटेड टू सी क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज एफ का रिलेशन नहीं दिया है, एफ का जेंडर नहीं दिया है. नेफ्यू है, डॉटर है, सन है, नीस है, क्या है, क्योंकि जेंडर नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी बोला है, तो अब सोचो, डी की वाइफ है ई, ई का फादर है ए, सो फादर इन लॉ विल बी माय आंसर. आंसर डी, फादर इन लॉ. ओके, ग्रेट, आंसर दे रहे हैं सब. थर्ड क्वेश्चन, टी इज द सिस्टर ऑफ डी. टी यहाँ पे इज द सिस्टर ऑफ डी, तो डी, टी को मैंने माइनस लिख दिया अभी के लिए. डी इज मैरिड टू पी. अब डी इज मैरिड टू पी तो मैंने बीच में डबल अंडरलाइन किया है. फिर पी इज सन ऑफ एम. पी इज सन ऑफ एम बोला है, मतलब पी अगर मेल है, सन बोला है तो मेल हो गया ऑब्वियसली. तो पी मेल है तो डी उसकी जो उसका रिलेशन है डी के साथ, वो वाइफ हो गई फिर डी उसकी, तो डी वापस डी भी नेगेटिव आ जाएगा. माइनस माइनस और प्लस, और एम का बोला है उसने कुछ, तो एम, पी इज सन ऑफ एम. ओके, हाँ, फिर यहाँ पे सन ऑफ एम हो गया. टी इज द मदर ऑफ जे. अब टी इज मदर ऑफ जे बोला है, तो टी इज मदर ऑफ जे, तो जे इधर मैंने नीचे लिख दिया. वाई इज फादर ऑफ यू. वाई इज फादर ऑफ यू, अब ये इन्फॉर्मेशन अभी तक उसने दी नहीं है तो मैं अभी कुछ इसको करूंगा नहीं. वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर. वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, ठीक है छोड़ो. आगे, यू इज द डॉटर ऑफ टी. अब यू इज द डॉटर ऑफ टी, तो टी के नीचे यू लिख दिया और यू डॉटर हो गई. अभी मैंने यू डॉटर बना दिया. अब उससे पहले वापस एक इन्फॉर्मेशन यू से रिलेटेड स्किप की थी, क्योंकि यू अभी मुझे मिला है, तो उससे पहले यू के जो स्किप की थी मैंने पॉइंट, उसको ज्वाइन करो. वाई इज फादर ऑफ यू. अब यू इधर हो गया तो वाई इज फादर, तो मतलब वाई मेल हो गया ऑब्वियसली क्योंकि वो वही होता. पर इससे ये पता चला वाई इज फादर ऑफ यू है, तो टी तो मदर है यू की, वो पता था, तो वाई और टी हस्बैंड वाइफ है. ओके, so we are done with y, t, u, j.
डी पी एम टिल नाउ। अब लास्ट लाइन, यू इज द डॉटर ऑफ टी हो गया, क्यू इज द सन ऑफ डी। अब क्यू इज द सन ऑफ डी, तो डी के नीचे इधर लिख दिया क्यू और पॉजिटिव बिकॉज सन है। तो ये क्रैक करना इजी था। एक और बार रिपीट करूंगा, डोंट वेरी। इसको पहले ये सॉल्व कर देता। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी इज रिलेटेड टू टी एज अ ब्रदर इन लॉ। ओके, आंसर इज थ्री, बिकॉज टी का ब्रदर इन लॉ पी हो जाएगा, क्योंकि टी की बहन है डी और उसका पति है पी। सो बहन का पति जो भी हो वो ब्रदर इन लॉ हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ। हाँ, नैन राइट। टी सिस्टर ऑफ डी। टी मैंने लिखा पहले सिस्टर ऑफ डी, तो टी के अंदर माइनस लिखा, डी का अपने को अभी तक पता नहीं है। डी इज मैरिड टू पी, डी और पी लिखा और बीच में डबल अंडरलाइन। पी इज द सन ऑफ एम, पी इज द सन ऑफ एम, तो पी का जेंडर प्लस हो गया, तो डी का उसका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो डी वाइफ हो गई, तो टी माइनस डी माइनस पी प्लस और एम ऊपर। फिर टी इज मदर ऑफ जे, टी इज मदर ऑफ जे, तो टी के नीचे जे हो गया। और वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई इज द फादर ऑफ यू, अभी मैं वाई इज द फादर डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता, तो आगे देखता हूँ। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, ठीक है। यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू इज डॉटर ऑफ टी, तो टी इधर है, यू नीचे लिख दिया मैंने, तो यू माइनस हो गया। और उसने यू और वाई का पहले क्या बोला था यहाँ पे, टी इज मदर ऑफ जे हो गया, वाई इज फादर ऑफ यू, वाई इज फादर ऑफ यू, तो यू इधर हो गया, फादर ऊपर वाई। तो फादर अगर यू का वाई है और मदर टी है, तो टी और वाई हस्बैंड वाइफ हो गए ऑब्वियसली, ठीक है। और उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, वाई हैज ओनली वन सन एंड वन ओनली वन डॉटर, तो वाई हैज ओनली वन सन, यू का उसने बोल दिया एक डॉटर है, तो ऑब्वियसली जे विल बी सन, क्योंकि जे का उसने जेंडर पहले दिया नहीं था, बट उसने यू का दे दिया। उसके बाद अपने को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वाई का एक सन है और एक डॉटर है, तो एक डॉटर तो यहाँ पे हो गई, तो ये सन हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू इज द डॉटर ऑफ टी हो गया। क्यू इज द सन ऑफ डी, लास्ट इन्फॉर्मेशन, क्यू इज द सन ऑफ डी, डी मैंने लिखा हुआ था पहले से, नीचे क्यू लिख दिया, क्यू को पॉजिटिव, सो क्यू इज द सन ऑफ डी। ओके, सो दिस इज डन। हाँ, इजी था सॉल्व करने का। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे इज रिलेटेड टू डी, सो आंसर विल बी नीस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, क्यू, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू रिलेटेड टू एम बोला है, तो रिलेटेड टू एम बोला है, तो ये ग्रैंड सन हो गया। ओके, सो बी आंसर। एम का जेंडर नहीं दिया तो उससे मतलब नहीं है ना, पर उसने क्यू का पूछा है, क्यू क्या लगता है एम के, तो क्यू का एम, क्यू एम के ग्रैंड सन लगता है एम के लिए। यस, ओके, चलो ठीक है फिर, आई थिंक वी आर डन विद दिस सेशन। hope you guys are completing your targets, daily targets. Do complete your daily targets, this which is which is the most important thing as of now for your preparation in this lockdown. So start doing your targets if those who are not able to do this. Okay, so I think we should end this session. हाँ, किसी को डाउट है तो बताओ। पार्थ, क्या डाउट है बोलो। Doubt, please post your doubts on the group chat. फोर्थ का आंसर क्या, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें। हाँ, सो उसने क्या बोला है, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे रिलेटेड टू डी। हाँ हाँ हाँ, नेफ्यू आंसर। ओके, दोज हु आर कंफ्यूज, यस नयन, राइट राइट, चलो अच्छा। यू गाइस आर पेइंग अटेंशन, माइनर माइनर चीजें को भी ध्यान दो। क्वेश्चन लिंक पे भेजता हूँ, ओके, टेस्ट लिंक मिल जाएगा, ये वही है, सीके एडयू पे जाओ, उसके बाद फिर लॉजिक में जाओ और ब्लड रिलेशन चूज करो, टैग मिल जाएगा, इतना कुछ है नहीं रॉकेट साइंस की ढूंढना पड़े। ठीक है, एनी अदर डाउट। सीईटी के लिए आगे जब टास्क, डेली टास्क बढ़ाया जाएगा तो वो दोज विल बी सफिशिएंट, अभी के लिए थोड़ा लाइट चल रहा है आपका सबका टारगेट्स। जब टारगेट्स थोड़ा हैवी होंगे तब सीईटी के लिए सही चल रहे हैं, वैसा हो जाएगा। ओके, तो अभी टारगेट्स बहुत लाइट चल रहे हैं आगे जाके, so please get used to this targets. After that, if the targets burden is increased, so you guys can manage at that time. Okay, p related to t बताओ। p related to ब्रदर इन लॉ होगा ना, क्योंकि t की बहन है d और d का
हस्बैंड है पी, तो टी मेरी बहन का पति मेरे लिए भी ब्रदर इन लॉ हो गया, और उसके लिए भी मैं ब्रदर इन लॉ हो गया। इसके लिए सिस्टर इन लॉ हो गया, पी के लिए टी सिस्टर इन लॉ, पर टी के लिए पी ब्रदर इन लॉ। ओके। टारगेट्स ग्रुप में मिल जाएगा, सी के डेली टारगेट्स में। ओके, ठीक है चलो। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव posted your doubts, and I think we are done with the session. Okay guys, we'll meet you in the next session. Thank you so much. Please respond on the group that this session was it helpful for you or not. Please respond to the group chat so I'll get to know ki how should I proceed in the next lecture. Okay, good night. Thank you so much, Heath. Good night, Pratmesh. Bye. Good night.